So solid day of cricket unfolded at Perth on day two, and it was cricket played in its purest form. For the fanatics like me, we saw patience, we saw perseverance, and grit was there. KL Rahul grinded the innings, Yashasvi Jaiswal grinded the innings. So overall, the way these Indians approached today, it was a joyful moment for all the viewers, and we really liked how the day paved out for everyone, which definitely eased up on day two, and it was expected. And to cover everything about it, Sushant joins me in for day two review. Hi, Sushant. Buzzing after day two? Amazing. I am sure we all were pretty optimistic after the third session yesterday, but no one expected this. No one expected this. Amazing day. And I'm sure this is going to be an exciting podcast क्योंकि बातें दिल की होने वाली Right, right. Uh, the way we expected, like क्या क्या हो सकता है, how it should be. We were talking about ideal scenarios कि यार पहले इनको ऑल आउट कर दो फटाफट फर्स्ट एक आध घंटे में, and then somebody needs to score 250s and 100 and so on. I was quite skeptical when you mentioned this, but it happened, and it is happening basically now. So I am pretty not, I wouldn't say shocked, but I'm amazed basically to see such type of batting from India, because we haven't seen such type of innings from either of the batsmen for a long, long time. दो सेशंस खेल गए and we didn't lose a wicket. It reminded me of the good old days when VVS Lakshman and Dravid used to perform और आउट ही नहीं होते थे. So it yes. was kind of a similar thing. And just to give you a summary of how the entire day paved out, so Australians began at 67 for 7, and in the first over itself of Bumrah, he picked up Carey, caught behind. Then slowly Nathan Leon and Stark went on to create a small partnership, not a big one, but small partnership, which was also taken care later on. But then happened what we weren't expecting, or probably we were fearing it shouldn't happen. It was the tail wagging for Australia. Although they didn't score much runs, but they Hazelwood and Stark stayed there on the crease for 89 minutes. काफी देर तक टिके रहे, काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो रहा था, but we had to be patient. And in the last over before lunch, we were able to finally wrap up things, and Harshit Rana was able to pick the wicket of Stark. Yeah. We got a slender lead of 46. तो ठीक है, मेरे को लगा कि नहीं यार ठीक है, एनी लीड from 150 wala total is definitely considered to be something really good. So credit goes to Bumrah for first innings collapse of Australia, and then happened the magical thing. We always talk about session by session batting, and these people finally proved that thing. It was an amazing display of Test cricket. आराम से खेल रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, मतलब देखने में मजा आ रहा था. सो मैंने ये नहीं सोचा था कि सेकंड सेशन में एक हाथ भी विकेट नहीं गिरेगा. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि विकेट तो ईज हुआ है, बट चांसेस हैं कि विकेट गिर सकता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस आर नोन फॉर डिसिप्लिन बॉलिंग. एंड हेजलवुड वाज बॉलिंग प्रिटी एक्यूरेटली. उसका मैंने देखा, ही वाज लाइक प्रिटी इकोनॉमिकल, 10 overs 9 runs and all. So it felt ki nahi yaar, he is going to be the key bowler. Then then came the moment in the second session where Stark was bowling, and Yashasvi Jaiswal bola कि the ball is coming very slow to me. So such type of things मतलब वो break कर देती है पूरा. But overall we are going to discuss it session by session. I just want to know about how things went in session 1, Sushant, so that you take us through. I think the major playing part today was the pitch. सब उसी की बात कर रहे थे. It seemed like the game was played on two different wickets between yesterday and today. बहुत ही अच्छी बात हुई. You mentioned about टी, तो टी के बारे में एक बहुत ही अच्छा सिनारियो हुआ. डे वन Right. की टी पे हम बात कर रहे थे इंडिया ऑल आउट हो गई 150 पे, और डे टू के सिनेरियो पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया लीड्स बाय 130 रन. So Hmm. between these two tea sessions, a lot of things change, and those are the same things which you are going to cover in today's session. It's going to be a very interesting one. But I thought
The pitch played a great part today. इस पिक्चर में आप देख सकते हो on your right hand side the the green pitch is day one and the same pitch पूरा grass dry down हो चुका है. Right. So I believe it was a batting duty today. The sun was also beating very much high. It was around 28 degrees and it was pretty much shining. Tomorrow the weather is supposed to be 34 degrees and the sun is supposed to be shine even hotter. So it's going to be a great batting track until and unless the cracks open up, जिसके बारे में वसीम यहाँ पर हम बात कर रहे थे during the lunch break. Right. So as you rightly mentioned, I won't stretch the first session much. The first session was pretty much nice. The first over set the tone for us. Bumrah again got his magic rolling. We got Nathan Leon pretty early as well. But then वो थोड़ा सा लास्ट विकेट का होता है ना, वो होल्ड करके रखता है जहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन तैयारी करता है कि मैं भी जाके फेस करने वाला हूँ. बट वो जो होल्ड था, वो होल्ड थोड़ा बड़ा हो गया बिकॉज both Hazelwood and Stark they batted together for around 24 overs. सो अगर इनकी पूरी ओवर देखी जाए तो दे हैव बैटेड फॉर 51 ओवर्स. उसमें सिर्फ आधे ओवर्स तो स्टार्क और हेजलवुड ही खेल गए. इनफैक्ट इनकी इनिंग्स की बेस्ट पार्टनरशिप 25 रन की जो है वो भी लास्ट इनिंग में ही लास्ट विकेट पे ही आई है. So I will say those were pretty crucial 25 runs added by Stark and Hazelwood. लेकिन if you tell me that we got bundled out at 150 on day one and then to get the opposition out on 104, I would take that on any given day. So the lead of 46 was a great lead to have. And Jasprit Bumrah, yesterday we spoke about his magic. 4 विकेट लिए थे और आज का दिन का टोन भी उसी ने सेट करके दिया. He took his 5th wicket. It was a great 5-wicket haul for him. And we have covered this yesterday also in our T20 World Cup campaign that such a gem of a bowler we have in our armory. So we will not stress too much on Bumrah. This was until session 1. But जो real grind थी, 46 का लीड हमें मिल चुका था एट लंच. जो रियल ग्राइंड थी वो एक्चुअली मिलने वाली थी. जो रियल सवाल था कि सेकेंड इनिंग में हम लोग चलेंगे नहीं चलेंगे, बिकॉज पिछले 3 टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड में हमने 6 कोलैप्सेस देखी, फर्स्ट इनिंग में भी एक कोलैप्स देखी, तो सबके सामने वही था. तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल वॉक डाउन द आइल टू फेस द फर्स्ट बॉल आफ्टर द लंच सेशन? तो सुशांत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इनिंग स्टार्ट होने वाली थी उसके पहले मैंने ट्वीट किया था कि कैसे भी करके 250 तक पहुंच जाओ, बिकॉज क्या है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रही नहीं है कंसिडरिंग इतने फ्रीक्वेंट कोलैप्सेस हुए हैं. उसके बाद जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम लोग बात कर रहे थे कि पीपल आर नॉट सस्टेनिंग, नॉट स्टेइंग ऑन द विकेट, दे डोंट वांट टू स्टे. आई मीन ऑब्वियसली दे वांट टू स्टे बट दे आर नॉट एबल टू बी पेशेंट इनफ. दे हैवंट बीन सो मच पेशेंट, जिसके कारण कि इतना हम लोग एक्सपेक्ट करें जो हम लोग शायद हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से. तो मांजरेकर ने भी कल यही बात बोली थी एंड सेम थिंग आई वांटेड टू रिपीट एज वेल कि क्या ये सारे क्रिकेटर्स जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, क्या उनके पास वो पेशेंस रहा है कि नहीं. बट एंड उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ट्वीट करा कि यार कैसे भी करके 250 बना लो सो दैट इवन 250 इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट स्कोर टू चेस इन द फोर्थ इनिंग्स. बट देन पिच हैड डिफरेंट moods today. We saw the picture actually. The color itself has completely changed. From a green top, we have come to a brown top. Sun came down. So जो visuals आ रहे थे during the lunch break, उसमें ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मतलब अगर थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, थोड़ी सी न्यू बॉल की शाइन अगर चले जाती है, then it is going to be easier to bat on. And we saw that thing. इनिशियल कुछ ओवर्स में तो ज्यादा देखो मूवमेंट तो था ही नहीं, ना लेटरल मूवमेंट था ना स्विंग मूवमेंट था, कोई सा मूवमेंट था नहीं. बट ऐसा लग रहा था ना कि यार स्टार्क इज नोन टू पिच इन दी पिच द स्टार्क एंड हेजलवुड बोथ आर नोन टू पिच द बॉल्स इन द राइट एरियाज. तो वो देख के लग रहा था कि शायद कुछ हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. एंड केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल लेड रियली वेल. 84 बना हमने फर्स्ट सेशन में एट 3 रन्स पर ओवर. एंड उसके कारण एक लगने लगा कि नहीं यार ये बहुत बढ़िया सेशन गया हमारे लिए. एंड द लीड हैज क्रॉस्ड 125 नाउ. 125 without loss in third innings of the match sets a tone basically कि नहीं, India are starting to get into a commanding position. So to continue this session part, post tea, I would like to know क्या माइंड में था आपके जब थर्ड सेशन में हम लोग जा रहे थे with a lead of 128 or something. See, जब सेशन 2 मतलब पोस्ट लंच सेशन खत्म होने वाला था एंड टी वाज अराउंड द कॉर्नर, वो विराट कोहली का जब से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विकेट गिरा है ना एट लास्ट बॉल ऑफ द डे, वो डर Yes. लगता है. तो जब
the ball was given to Manas Labuschagne for the last over. I was happy because that kind of summed up the session. कि ऐसे नहीं कि Labuschagne wicket नहीं ले सकता, but then Australia was depending on some kind of luck. कि Right. यार कोई भी आके पार्टनरशिप. So I went into the tea session pretty much happy because एक जैसे आपने बोला विकेट नहीं गिरा. Now इट टेक्स अस जैसे ही विकेट नहीं गिरा ना, यू वर स्पॉट ऑन जब आपने राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का नाम लिया, बिकॉज दोज यही दो बैट्समैन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऐसा खेला है कि पूरे सेशन में विकेट नहीं दिया था. तो Correct. वो दो नाम हर क्रिकेट फैन के दिमाग में आ रहे थे एंड ऐसे लगा कि नहीं यार, अभी हमने 84 किया है, हमारा लीड ऑलरेडी 126 पे पहुंच चुका है. सो यार दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट बिकॉज द स्कोर वाज अराउंड 126 टू 130 फॉर नो लॉस, व्हिच इज अ Right. ग्रेट ग्रेट स्टार्ट. अभी जब हम लोग 20 मिनट्स के ब्रेक पे आए थे ना, तो ऑल द कैलकुलेशंस वर गोइंग ऑन इन माय हेड कि यार कितना पुश कर सकते हैं. तो Correct. सबसे पहले जैसे हमने कल गोल्स ऑफ द डे भी डिस्कस किया था कि सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आधा घंटा हर सेशन का खेल के निकालो, बिकॉज मॉइस्चर बोल लो, थोड़ा सा पिच रोल होता है, फर्क आता है. बट आज जो हमने देखा है दोनों केएल राहुल ने 100% फर्स्ट इनिंग्स में भी सेम डिटर्मिनेशन दिखाया था. Correct. एंड हमने फर्स्ट इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल का भी बात की थी कि व्हेन ही प्लेस दैट बॉल फॉर मिचेल स्टार्क ओपन फेस अपने बैट का, वो बहुत ही जबरदस्त डिफेंस किया था. Right. These two today played with utmost grit and determination. They had put a value on their wicket, which is what Test cricket is all about. And I'm so happy to see these changes in the Indian cricket team right now. I'm not worried about the run rate. क्योंकि यार we are still only in day 2. और Correct. जब थर्ड सेशन चालू हो रहा था मुझे था कि यार और कितना पुश करेंगे, बिकॉज थर्ड नंबर पे देवदूत पडिक्कल आने वाला था जो इतने हाईली कॉन्फिडेंस में नहीं है. तो जब तक Mhm. ये दो बैट करेंगे, मैंने बोला कि यार पहला आधा घंटा खेल के निकाल लो, फिर सेशन में चाहिए तो 60 या 70 रन निकाल लो, आई विल बी हैप्पी. बट वो लीड को धीरे धीरे पुश करके 200 के पास लेके जाओ एंड देन ऑस्ट्रेलिया विल स्टार्ट क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर. एंड सेम चीज हुई. सेकेंड सेशन स्टार्टेड विथ हेजलवुड का ब्रिलियंट स्पेल. देयर वाज Exactly. सम लैटरल मूवमेंट ओवर देयर एंड वी वर नॉट श्योर कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है कि द बॉल इज फॉलिंग ऑन द क्रैक्स. तो Right. थोड़ा सा मूवमेंट था, बट दैट वाज नाइसली नेगोशिएटेड बाय बोथ यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल वंस अगेन. एंड देन आई थिंक जायसवाल की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि वो प्रेशर एब्जॉर्ब करता है एंड देन ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉलर पे डाल देता है, Correct. because then he started to play some nice free shots. And then third session हम छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना, 25 रन के, फिर दोनों बैट्समैन अपने हाफ सेंचुरी पे चले जाए, Right. फिर कोई तो 75 पे चले जाए. आई मीन आज जो मांगो वो पूरा हो रहा था इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. तो यार क्लियरली मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि टेस्ट मैच में 6 बॉल डॉट आ रही है, मेडन पड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है. बट यही मजा आ रहा था ना कि जिस तरह से कमिंस के और उनके शोल्डर्स ड्रॉप डाउन हो रहे थे, तो मजा आ रहा था. So third session was again nothing short of grit and determination. Both played to the best of their abilities. 84 in second session, 88 in the last session, not giving any wicket away. I mean, और कुछ नहीं मांग सकते थे हम. Right. Now we have a lead of what 212 and uh, amazing है यार. और हम लोग क्या मांग सकते हैं, 218 का लीड है. And it is tomorrow we are going to start the day 218 for 0. तो Exactly. यार इससे ज्यादा और कुछ ही नहीं मांग सकते थे, बिकॉज दे डिड एवरीथिंग राइट. एंड देन नेथन लियोन जब आ रहा था, दे इंश्योर्ड कि उसके ओवर में 3 रन 4 रन 3 रन 4 रन आ रहे थे. और वो जो शॉट 6 मारा जायसवाल Right. ने, आई मीन वो 6 नहीं था, वो पूरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाया उसने. बिकॉज मजा आता है ना जब लॉन्ग ऑन ऐसे देखता है बॉल को जाते वक्त. बहुत लंबा एंड छक्का था. बहुत, और लॉन्ग ऑन है फिर भी उसको फर्क, मतलब दैट टेल्स यू कि व्हेन आई वांट टू हिट आई विल हिट. Exactly. तो ऐसे सिक्सर बहुत ही अच्छा गांगुली लगा. मारा करते थे. करेक्ट गांगू. बट यार हमने पहले भी बात करी थी, दिस गाय हैज सो मच ऑफ क्रिकेट इन हिम. मतलब ये दिन रात क्रिकेट की बातें करता है. ही वांट्स टू लर्न एज मच एज पॉसिबल. ही हैज ग्रेट स्टैट्स, ग्रेट रिकॉर्ड. हमने थर्ड सेशन की अगर बात करें तो हम लोग ये सेशन 5 में भी देख सकते हैं. Until tea yesterday, the session count was Australia 2, India 0. Post tea, it has changed completely. It's India 4 and Australia 2 right now. Right. And we are pretty much in the driving seat because Jaiswal is at 90, KL Rahul is at 62. So this is an amazing start. We'll talk about goals for day 3 at the end of our
of our podcast. But this is like a dream right now. कल हमने यही बोला था कि एक बैट्समैन सेंचुरी मारे, दो बैट्समैन हाफ सेंचुरी मारे, दे आर ऑलमोस्ट देयर, बट द गेम हैज नॉट बीन वन येट, इट्स ओनली डे 2. राइट, अगर अगर कल हम लोग थोड़ा खेल जाए, मतलब ये दोनों खेल जाए, देयर इज अ हाई चांस दैट वी कैन बैट ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ द टेस्ट मैच. करेक्ट. एंड नथिंग लाइक इट, मतलब उसके आगे कुछ नहीं होगा. तो ये पूरा था. बट आई वुड वांट यशस्वी यू टू स्पीक टू अस अ लिटिल बिट अबाउट हीरोज ऑफ द डे. See, heroes of the day are pretty much in front of us. दो ही नाम है जिन्होंने पूरा गेम, पूरा डे डोमिनेट किया. इट वाज केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल. सो केएल राहुल का कैसा रहा ना, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ है ओवर द इयर्स एंड बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी. बट इनकंसिस्टेंसी क्यों भी रही है? बिकॉज ही हैज बीन फ्लोटेड इन डिफरेंट पोजीशंस जस्ट टू अकोमोडेट समवन और द अदर. तो इस पे मेरा एक क्वेश्चन भी है जो कि मैं आपसे बाद में पूछूंगा. तो जो जितना डिसरिस्पेक्ट, क्रिटिसिज्म केएल राहुल का रहा है ना, उतना आई वांट पीपल टू अप्रिशिएट एज वेल the way he has carried his innings today. He looked confident even in the first innings when everybody was struggling, and today he was sure what he wanted to do. He played a very fine innings. He's on 62 not out, and he looks to score a big innings tomorrow, probably in 3 digits. And when we talk about Yashasvi Jaiswal, so time and time he has proven his mettle. He's a very young cricketer. Australia was going to be a big challenging place for him, and we all had, even me myself had a question on previous podcast कि उसका सत्ता के ऊपर नबे जैसा हाल तो नहीं होगा. But he has answered me in a very, in his way basically. First innings में it was difficult because of the green top, and he got out on a very good ball. But in the second innings, he has shown his great commitment, determination to stay on the pitch. Because ऐसा भी नहीं है कि यार हमने जो देखा था बांग्लादेश के अगेंस्ट की, he came and he blew बांग्लादेश ओवर, 10 ओवर में 110 रन मार दिए. आज जहां पर जरूरत थी, he stayed on the wicket, he churned those runs, and he made sure that the position India currently is in, he is one of the major factors behind it. So कितना भी बात करो, उसके टैलेंट का बहुत कम है. इतनी कम एज पे इतना ज्यादा परफॉर्म करना और इस लेवल पे परफॉर्म करना, ऑस्ट्रेलिया जाके यू आर डोमिनेटिंग द बॉलिंग लाइनअप ऑफ कमिंस, स्टार्क एंड हेजलवुड is a very big thing. And ऊपर से आप स्लेज कर रहे हो in a very polite way to to one of the लीथलेस्ट बॉलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मिचेल स्टार्क, कि यार मेरे को स्लो लग रही है तेरी बॉल. तो मतलब कितना उसके माइंड में पड़ा होगा स्टार्क के, आई कैन जस्ट इमेजिन. So it's a very big thing, very commendable thing, the way these two have batted, and I really want these two to convert these their starts into 3 figures. So these were the heroes of the day for me. Coming to I'll, day three, I, yeah, 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 I just want to add something over here. You spoke about great determination, and हमने ये फर्स्ट वीडियो जो हमने ऑस्ट्रेलियन सीरीज की स्टार्ट की थी, वहां पे बोली थी कि अगर हमको यहाँ पे परफॉर्म करना होगा तो ये मेंटेलिटी की बात आएगी. आज जिस तरह से यशस्वी जायसवाल खेला ना, ही टुक मी बैक टू हिज टेस्ट डेब्यू. यशस्वी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जब जायसवाल ने अपनी फर्स्ट टेस्ट मैच इनिंग्स खेली थी, ही स्कोर्ड अ 50 in 103 balls. एंड देन ही वेंट ऑन टू स्कोर 179 रन्स. बंदे ने आज अपने करियर की सबसे स्लो 50 मारी है. मतलब, और बहुत right, खुशी हुई मुझे इस बात की कि ही टुक 123 बॉल्स टू स्कोर हिज 50. बट नाउ आई एम श्योर, मैंने बोल दी कि मेरी से एक्सपेक्टेशंस क्या है करके इस इनिंग में, बिकॉज ये जिस तरह से खेलता है, मतलब हमने इसको आईपीएल में देखे हंड्रेड्स फॉर फन मारते हुए, वानखेड़े में भी देखे हैं और पिछले सीजन में देखे. ये एक सीजन वंडर नहीं था, ही हैज प्लेड सीजन आफ्टर सीजन. पूरा 2023 2024 में राइट नाउ ही इज द बैट्समैन विद द हाईएस्ट एवरेज व्हिच इज अबव 55 फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर. यार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना मजाक नहीं होता, और ये right. बंदा कर रहा है. एंड हेड्स ऑफ टू हिम. I am very happy that this is happening to him for the first test match, and I'm just hoping that this everything continues for the remaining 4 test matches as well, because if this is the way we keep playing a test match, I'm sure जो हमारे दिल में क्या बोलते हैं वो बुरा लगा था न्यूजीलैंड सीरीज का, वो सब पीछे चला जाएगा. यार आज के एक दिन ने हमको सब बुला दिया है. एक दिन का प्रॉपर टेस्ट मैच क्रिकेट ने
तो यार Correct. मजा आ गया ये देख के. यस, आई एम सॉरी आई कट यू, आप कुछ पूछ रहे थे. No, no. I was just asking about. See, reason of asking me this question is because you were the one who drove the pointers for day two. कि क्या क्या expectation होनी चाहिए, क्या एक ideal scenario होना चाहिए day two का for India. So I just wanted to ask the same question to you for day three now. कैसा रहना चाहिए? क्रैक्स ओपन हो जाए या मतलब बिना सन जैसा आप बोल रहे हो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो मतलब पूरा विकेट ही पूरा सूख जाए, कैसा क्या? So for our viewers, I just want to know what should be the strategy of India and एक बेसिक स्टार्ट क्या होना चाहिए, एक बेसिक टारगेट क्या माइंड में होना चाहिए इंडिया का? पर्थ का जो विकेट है ना ऑक्टे स्टेडियम का, वो नॉर्मली थर्ड डे से समवेयर अराउंड 30 सेशन क्रैक ओपन होने चालू हो जाते हैं. बिकॉज एज वी नो दिस इज समर, दिस इज द स्टार्ट ऑफ समर इन ऑस्ट्रेलिया. तो एक्सट्रीम ठंडी से दे आर कमिंग इन टू समर्स राइट नाउ. तो पिच को जैन फेब में अलग बिहेव करता है, लेकिन नवंबर में ये थर्ड डे के आसपास है ना थोड़ा क्रैक ओपन होने चालू हो जाते हैं. सो द फर्स्ट सेशन इज स्टिल गोइंग टू बी अ गुड सेशन टू बैट, provided we see off the first half an hour. तो ओके. आई बिलीव बोथ केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल अगर फर्स्ट हाफ एन आवर सी ऑफ कर ले, मतलब हम लोग वो लोग ऐसा सोचे कि ये इनिंग स्टार्ट कर रहे हैं जैसे आज उन्होंने की थी सेकेंड सेशन में, वैसे ही कि हम लोग स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं करके, एक बार वो हो जाए ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा. बिकॉज द लास्ट थिंग वी वांट इज विकेट्स फॉलिंग इन अ बंच. तो वो हम नहीं चाहते. अगर वो फर्स्ट हाफ एन आवर से खेल जाए तो देवदत्त पडुकेल के लिए सबके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा. तो द फर्स्ट चैलेंज वुड बी टू सी ऑफ द फर्स्ट हाफ एन आवर वगैरह. नाउ राइट. इंडिया हैज बैटेड फॉर रफली अराउंड 50 प्लस ओवर्स नाउ, तो विच मीन्स 30 ओवर्स इन समवेयर अराउंड सेकंड सेशन न्यू बॉल विल बी ड्यू. राइट. तो ये डिपेंड करेगा कि अभी कल के सेशन में बॉल कितना रिवर्स कर रहा है, कि ऑस्ट्रेलिया न्यू बॉल लेगा कि नहीं लेगा. तो समवेयर डाउन द लाइन हमको ये भी पता है अगर अगर ये मैच पे बॉल जब भी स्विंग हुआ है लेटरल मूवमेंट, वो नए बॉल से ही हुआ है. तो तो ये दोनों को यही पकड़ के चलना है. बिकॉज फर्स्ट सेशन अगर हम लोग कल 2 या 3 की भी एवरेज रन रेट से खेलते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो रन को साइड में रख के दे बोथ प्रोबेबली शुड जस्ट सी ऑफ द फर्स्ट सेशन. एंड अगर हम लोग लंच तक पहुंचे मैक्सिमम ये दोनों दे जाए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन 2 विकेट गिरे समवेयर अराउंड द टी सेशन, अगर हम लोग 4 विकेट या 5 विकेट तक चले जाते हैं, then I am sure third session में we will see some attacking cricket. Because I still think ऑस्ट्रेलिया को हम लोग लास्ट के 2 दिन दे देंगे तो विकेट विल डिटोरेट एवरीथिंग. बट अगर इतना अच्छा खेल रहे हैं तो लेट्स जस्ट टेक देम आउट ऑफ दिस मैच. और उसके लिए हमको डे 3 पे बैट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. विथ प्लेयर्स लाइक कोहली, विथ प्लेयर्स लाइक विथ प्लेयर्स लाइक पंत, विथ प्लेयर्स लाइक नीतीश रेड्डी राइट नाउ, रन रेट इज नेवर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. तो वो कभी भी बिल्डअप हो सकता है. तो डे 3 का सिंपल एम अगर होगा कि इफ यू ट्राई टू बैट आउट डे 3, दैट वुड बी ग्रेट. बिकॉज अगर डे 3 के एंड के लास्ट 1 आवर तक इंडिया बैट कर रही है तो हमारा लीड तो 100% 500 क्रॉस हो गया. एंड देन ऑस्ट्रेलिया विल हैव नथिंग बट टू डिफेंड. एंड टू डिफेंड ऑन दिस विकेट ऑन डे नंबर 4 and 5 वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. सो वो बाद में जाएंगे. बट डे नंबर 3 आई होप डे नंबर फर्स्ट सेशन में अगर हम लोग 2 विकेट से ज्यादा ना जाए तो देन वी विल बी कंप्लीटली इन द ड्राइविंग सीट एंड विल प्रोबब्ली बैट ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ द टेस्ट मैच. All right. So somewhere around 400, 450 would be an ideal score to defend. Yes, correct. But the looking at the start we have right now, I don't want our batters to give up. I don't want them to give a big statement and score a 400 run total in the second inning itself. Okay. Because यार ये उनके छाती पे पैर रख के बात करने वाली बात होगी कि पर्थ पे आके हमने 400 मारे हैं. तो यार वो भी ये थर्ड इनिंग्स में. बहुत ही अच्छा स्टैट होगा. करेक्ट करेक्ट. और यार यहाँ पे And जीते नहीं है ना, तो इस स्टेडियम पे एक जीत तो बनती है. right. And as you mentioned about the new ball, so मैं calculate कर रहा था when you were speaking. Current right now we have played 57 overs. So मैं जितना अभी तक स्टडी करता हूँ कि 23 से लेके 25 ओवर्स यूजुअली ऑस्ट्रेलिया एक सेशन में डाल फर्स्ट रही है. सेशन. करेक्ट सो करेक्ट. हाँ, एक सेशन में 25 ओवर्स के आसपास कुछ गिर रहे हैं. तो ऐसे मिला के लंच के जस्ट बाद में प्रोबेबली दे विल टेक द न्यू बॉल. एंड आई बिलीव लंच के बाद वाला सेशन वुड बी द बेस्ट टाइम टू बैट एज वेल. सो एक अच्छा कंपटीशन रहेगा बैट टू बॉल का उस टाइम पे. एंड विल सी हाउ थिंग्स टर्न अप in the second session. But first session, yes, initial 20-25 minutes would be crucial. And uske baad, I think it should be an easy passage of play for India.
Yashasva, I wanted to share something very, very, very interesting with you. This is new to you, but before Mhm. we have a function at our place tomorrow, और मेरे cousins Right. आए हैं घर पे. मेरे कजिन ने मेरे को ये पॉडकास्ट पे आने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट की है, और उसने मुझे ये आपसे भी कन्वे करने के लिए कहा है. उसने मुझे बोला है कि आप कुछ भी हो जाए ना, पॉडकास्ट बंद मत करो, आप करते रहो. तो मुझे लगा यार वेरी गुड, मोटिवेट कर रहा है. मैंने पूछा थैंक्स यार. तो उसने मुझे बोला नहीं, ये मैं मेरे सेल्फिश मोटिव के लिए कर रहा हूँ. तो मैंने बोला व्हाट वाज दैट. बोलते हैं देखो आप लोगों ने पॉडकास्ट कब से, एंड ही इज ऑल्सो लिवरपूल फैन. Oh, nice. तो उसने बोला आप लोगों ने पॉडकास्ट कब से स्टार्ट किया. मैंने बोला हम लोगों ने पॉडकास्ट तो कोशिश की थी, बट हमने चालू किया था ये इंडिया की T20 वर्ल्ड कप कैंपेन से. तो Right. बोलता है ओके, और कौन जीता. तो मैं बोला इंडिया. Oh man, nice. फिर Got it. फिर वो बोलता है आप लोगों ने आपकी FPL की पॉडकास्ट कब से चालू की. हमने बोला ये सीजन से. बोलता है और लीग टेबल पे लीडर्स कौन है. मैंने बोला लिवरपूल. बोलता है और आपने अभी ये पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप छोड़ के कब चालू की. मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया सीरीज से. बोलो देखो फर्क आ रहा है. तो मैंने बोला यार ये तो अलग मोटिवेशन है, पक्का करेंगे. Right. So it's a nice link up that your cousin has done, and we thank या your cousin basically to do such type of analysis. We could be the lucky ones, and we want us to be the lucky ones for India, for Liverpool, and for and इसका एक और लिंक ये है, सुशांक, ये हो सकता है मैं अभी तक FPL में अच्छा कर रहा हूँ, and this is my highest rank till now. I didn't want to speak about it, but luckily अच्छा हो रहा है. सो अच्छी स्पिरिट में अगर कोई सी भी चीज करे ना सुशांक, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे ही होते हैं, बिकॉज वी हैव बीन एब्सोल्युटली. पुटिंग इन हार्ड एफर्ट्स बिहाइंड दिस. यस. आई अंडरस्टैंड द पेन दैट वी गो थ्रू. कैसे भी करके वी आर मैनेजिंग टू मेक द वीडियोस. सो लोगों की विशेष तो है ही, एंड वही विशेष हैं जिसके कारण शायद ये चैनल आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू योर कजिन for bringing in this type of feedback, because this type of things basically motivate people like us. क्योंकि क्या होता है ना, दिल से फीडबैक दिया यार बंदे ने, एंड आई एम genuinely thankful, and I hope that he comes on our podcast someday or the other, and we get to interact with him. So a nice parting thought brought smile on us, although it was already radiant, but then it's a nice thing, a very good thing that he has shared. So thank you, cousin. नहीं यार बहुत अच्छा है, एंड अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बोथ डेज वी एंडेड ऑन अ हाई. बस अभी ये Right. टेस्ट मैच में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग गोइंग टू फार अहेड. कल का दिन इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग डे अहेड. नॉर्मली यूज्ड टू से कि थर्ड डे डिसाइड करता है कि टेस्ट मैच कौन से साइड जाएगा. ऑल्दो रिसेंट पास्ट में ये थर्ड टेस्ट में टेस्ट मैचेस एंड हो रही थी, बट दिस इज अ ग्रेट ग्रेट टेस्ट मैच इन द मेकिंग, एंड आई होप टुमारो वी आर टॉकिंग, वी विल स्पीक विद द सेम पॉजिटिविटी, बट Right. स्माइल तो इंडिया ही लाएगी अपने चेहरे पे. सो होप वी कीप द सेम स्माइल गोइंग ऑन आवर्स एंड आवर फ्रेंड्स फेसेस as well. So it was a good podcast for our viewers and for ourselves as well. Good. The only parting thought that I have is the reviews that we received yesterday, and the way people are reaching out to us, mentioning how detailed discussions that we are doing. Although the videos are going till half an hour, we want to curb them short. But kaisa hota hai na, we want to discuss and cover everything, and that is the reason why these videos are on the lengthier side. But we'll make sure that जो भी हम कवर करें वो पूरा कवर करें, एंड एट द सेम टाइम कुछ भी चीज मिस ना हो. So thank you for all the feedbacks that we'll be receiving from our subscribers, friends, family members, relatives, and we look forward to your support, because without your support we won't be able to grow. So keep watching JPL Talkies, and keep cheering for Team India. Thank you.